بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بادشاہ نے پوچھا، بیٹے تو چپ کیوں ہے؟ جواب کیوں نہیں دیتا؟ میں نے کہا، حضور اب کا حکم سر آنکھوں پر۔ بادشاہ نے فوراً قاضی اور گواہوں کو ہلا کر میرا نکاح ایک شریف زادی سے کر دیا، جو خوبصورت بھی تھی اور مالدار بھی اور بڑے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ ایک بڑی ہولی مجھے رہنے کو ملی۔ بہت سے نوکر چاکر میری خدمت میں حاضر ہو گئے۔ بادشاہ نے اچھی خاصی رقم میرے لیے مقرر کر دی جو ہر مہینے مجھے ملتی تھی۔ میں اپنی تمام مصیبتوں کو بھول کر ہنسی خوشی رہنے لگا۔ میری بیوی مجھے بہت چاہتی تھی اور میں بھی اسے پسند کرتا تھا۔ سوچتا تھا کہ جب وطن جاؤں گا تو اسے بھی ساتھ لے جاؤں گا۔ آدمی کچھ سوچتا ہے، خدا نے اس کی تقدیر میں کچھ اور لکھا ہوتا ہے۔ آئندہ کے حال کا کیا پتہ ہے؟ اپنے پڑوسی سے میری بڑی دوستی تھی۔ اتفاق سے ایک دن اس کی بیوی فوت ہو گئی۔ میں افسوس کرنے اس کے پاس گیا۔ دیکھا کہ اس کی حالت بہت خراب ہے، جیسے مرنے ہی والا ہو۔ میں نے کہا، بیوی کا اتنا غم نہ کر، خدا تیری عمر دراز کرے، ہو سکتا ہے کہ تجھے کوئی اور بہتر بیوی مل جائے۔ یہ سن کر وہ زور زور سے رونے لگا اور بولا، اے دوست، میری زندگی کا اب ایک ہی دن باقی رہ گیا ہے، دوسری شادی میں کیسے کروں گا؟ اس کی بات سن کر مجھے حیرت ہوئی اور میں نے کہا، اے بھائی، بری بات منہ سے مت نکال، تو بالکل صحت مند ہے۔ اس نے جواب دیا، اے دوست، تیری جان کی قسم، کل تو مجھے یہاں نہ پائے گا، نہ آئندہ کبھی دیکھ سکے گا۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کیوں؟ اس نے جواب میں کہا، آج جب میری بیوی کو دفن کریں گے تو مجھے بھی اس کے ساتھ زندہ دفن کر دیں گے۔ ہمارے شہر کا یہی دستور ہے، اگر بیوی مر جائے تو شوہر کو اس کے ساتھ زندہ دفن کر دیتے ہیں، اور شوہر مر جائے تو بیوی کو۔ میں نے کہا، یہ بہت برا دستور ہے۔ ہم باتیں کر ہی رہے تھے کہ شہر کے لوگ بڑی تعداد میں پہنچے۔ انہوں نے بیوی کو تابوت میں رکھا اور میرے پڑوسی کو بھی ساتھ لے چلے۔ شہر کے باہر پہنچ کر سمندر کے قریب ایک پہاڑ کے دامن میں آئے۔ وہاں ایک بڑا پتھر پڑا تھا۔ اسے ہٹایا گیا تو اس کے نیچے کنویں کی شکل کا غار دکھائی دیا۔ لوگوں نے تابوت کو اس میں ڈال دیا۔ میں نے پوچھا تو معلوم ہوا کہ پہاڑ کے نیچے ایک اندھا کنواں ہے۔ پھر میرے پڑوسی کی باری آئی۔ اسے رسے سے باندھ کر غار میں اتار دیا۔ ایک مٹکا پانی اور 7 روٹیاں بھی ساتھ کر دیں۔ پڑوسی نے نیچے پہنچ کر رسہ کھول دیا۔ لوگوں نے رسہ کھینچ کر اس بڑے کنویں کا منہ بند کر دیا اور میرے دوست کو اس اندھیرے غار میں چھوڑ کر شہر کو لوٹ گئے۔ میں نے دل میں کہا کہ یہ موت تو دوسری موتوں سے بھی زیادہ کٹھن ہے، اور تو کچھ نہ سوجھا۔ سیدھا بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ میرے اقاق اب کے ملک کا یہ دستور نہایت ہی خراب ہے۔ بادشاہ نے جواب دیا، یہ دستور پرانے وقتوں سے چلا آ رہا ہے، اسے کسی صورت بدلا نہیں جا سکتا۔ میں نے پوچھا، اگر میری بیوی مر جائے تو کیا مجھے بھی اس کے ساتھ اندھے کنویں میں ڈال دیا جائے گا؟ میں ٹھیرا پردیسی، کیا میرے ساتھ رعایت نہ ہوگی؟ بادشاہ نے سختی سے کہا، نہیں، اگر تیری بیوی مر گئی تو ضرور تجھے بھی اس کے ساتھ کنویں میں ڈال دیا جائے گا۔ ان تمام باتوں سے مجھ پر خوف طاری ہو گیا۔ میں نے سوچا کہ اگر بیوی مر گئی تو میرا مرنا بھی یقینی ہے۔ میں نے دل کو تسلی دینی چاہی کہ کل کا حال کسے معلوم ہے، کیا پتہ کون پہلے مرے کون بعد میں۔ لیکن مجھے جس گھبراہٹ نے گھیر رکھا تھا وہ کسی طرح کم نہ ہوئی۔ قسمت کا کھیل دیکھیے کہ تھوڑی مدت بعد میری بیوی بیمار پڑی اور چند روز بعد فوت ہو گئی۔ شہر والے تعزیت کرنے میرے پاس آئے۔ خود بادشاہ نے بھی آ کر افسوس کیا۔ پھر میری بیوی کو نہلا کر بہترین کپڑے اور نہایت قیمتی زیور پہنائے گئے۔ لاش کو تابوت میں رکھا اور اس پہاڑ کا رخ کیا جس کے پاس کنواں تھا۔ وہاں پتھر بنا کر تابوت کو کنویں میں ڈال دیا۔ میرے دوست اور سرل والے مجھ سے اس طرح گلے ملے جیسے میں کسی لمبے سفر پر روانہ ہونے والا ہوں۔ میں نے بہت فریاد کی کہ یارو، میں پردیسی ہوں، تمہارے دستور کو نہیں مانتا،
उन्होंने मेरे चीखने चलाने की जर्रा बराबर परवाह न की और 7 रोटियां और पानी के साथ रस्से के जरिए नीचे उतार दिया और बड़े पत्थर से कुएं का मुंह बंद करके चलते बने। मैंने गार में बहुत सी लाशें पड़ी देखीं जिनसे सख्त बदबू आ रही थी। मैंने अपने आप से कहा, मेरे साथ होना भी यही चाहिए था। हर सफर में मरने से बाल बाल बचता रहा, इसके बावजूद सफर करने से बाज नहीं आया। अब सफर करने की कीमत जान देकर अदा करूंगा। गार में मुझे दिन रात का बिल्कुल पता ना चलता था। जब भूख प्यास लगती तो रोटी के 2-3 टुकड़े खा लेता, प्यास लगती तो 1-2 घूंट पानी पिया। डरता था कि रोटियां खत्म ना हो जाएं। लाहौल पढ़ पढ़ कर कहता, इस शहर में शादी करके मैं तो अजाब में फंस गया। काश में समंदर में डूब गया होता, पहाड़ से गिरकर मर जाता। इस खराब मौत से वही बेहतर था। अपने आप को बुरा भला कहते रहने से क्या हासिल था। आखिर मैंने उठकर गार को देखना भालना शुरू किया। पता चला कि वो दूर तक फैला हुआ है। हर तरफ लाशों और गिल्ली सिरी हड्डियों के ढेर लगे हुए थे। मैंने लाशों और हड्डियों से हटकर गार के एक अलग थलग कोने में अपने लिए जगह बनाई और वहीं जाकर सो रहता। चंद रोज गुजरे तो पता चला कि रोटियां खत्म होने को हैं और पानी भी जरा सा रह गया है और मुझे भूखा प्यासा मरने से कोई नहीं बचा सकता। ये सोच कर मैं अपना सर पकड़े बैठा था कि पत्थर अपनी जगह से हटाया गया और गार में थोड़ी सी रोशनी हुई। देखा तो एक ताबूत उतारा जा रहा था। इसमें एक मर्द की लाश थी। इसके बाद एक औरत कभी खाना पीना देकर नीचे पहुंचा दिया गया। मैं औरत को देख रहा था। वो मुझे नहीं देख सकती थी क्योंकि इसकी आंखें अभी अंधेरे से मानूस न हुई थी। जब लोग कुएं को पत्थर से बंद करके चले गए तो मैंने एक मुर्दे की बड़ी सी बड़ी उठाई और जाकर औरत के सर पर कई दफा मारी, यहां तक कि वो मर गई। इसके जेवर और जवाहरात मैंने उतार लिए और खाना पेंटा लेकर उस कोने में जा बैठा जहां मैं सोया करता था। इसके बाद मैंने ये तरीका अपना लिया। जब किसी मर्द औरत के दफनाने की नौबत आती तो मैं उसके जिंदा साथी को मार डालता। इस तरह मेरे पास थोड़ा बहुत खाने पीने को जरूर मौजूद होता। मैं बड़ी एहतियात से काम लेता, हमेशा जरा जरा सा खाता और एक वक्त में घूंट भर से ज्यादा पानी ना पीता। खुदा जाने इस हालत में कितने दिन गुजर गए। एक दफा मैं सोने के लिए लेटा ही था कि मुझे खड़खड़ाहट सुनाई दी। मेरी समझ में ना आया कि शोर किस वजह से है। मैं उठा और एक मुर्दे की हड्डी लेकर इस तरफ बढ़ा जिधर खटड़बड़ हुई थी। थोड़ी दौड़ चलकर एक वहशी जानवर नजर आया जो मुझे आना देखकर भागा। मैंने इसका पीछा किया। आखिर एक जगह पहुंचकर एक कोने में कोई चीज तारे की तरह चुपकुत्ती नजर आई। मैं अलिफादेर बढ़ता गया तो उजाला सा महसूस हुआ। मुझे यकीन हो गया कि गार में कोई सुराख है जो बाहर की तरफ निकलता है। और आगे जाकर पता चला कि जानवरों ने यहाँ पहाड़ी में सुरंग लगाई हुई है जिसके रास्ते वो अंदर आते हैं और पेट भरने के बाद बाहर निकल जाते हैं। ये मालूम होते ही मेरी जान में जान आ गई। सोचा कि अब मैं गार में पड़े पड़े मर जाने से बच जाऊंगा। रींग रींग कर इस सुरंग से बाहर निकला तो अपने आप को बड़े पहाड़ पर पाया जिसके एक तरफ समंदर था और दूसरी तरफ शहर और बाकी जजीरा। ये ऐसी जगह थी जहां कोई आदमी ना पहुंच सकता था। मैंने खुदा का लाख लाख शुक्र अदा किया। सुरंग के रास्ते में खार में गया, मर्दों के अच्छे अच्छे कपड़े लिए, कुछ पीने और बाकी जिनमें तरह तरह के जवाहरात, मोतियों की लड़ियां, सोने चांदी के जेवर जिनमें हीरे जुड़े थे बांध है और उन घड़ियों को सुरंग के दहाने पर ला रखा। अब मैं रोज सुरंग से निकलकर इस उम्मीद पर बाहर आ बैठता कि शायद कोई जहाज उधर से गुजरे और मुझे इस गार से, जो कैद खाने से कम न था, नजात मिले। रात को गार में जाकर सो जाता और जो जिंदा मर्द औरत गार में आ जाती इसे मार डालता ताकि खाने पीने की कमी ना हो। एक रोज मैं समंदर के किनारे बैठा अपनी हालत पर गौर कर रहा था कि समंदर में एक जहाज नजर आया। मैंने मर्दों के कपड़ों में से एक सफेद चादर निकाली और इसे लहराता हुआ उधर से अलिफादेर दौड़ने लगा। खुशकिस्मती से जहाज वालों ने सफेद चादर की वजह से मुझे देख लिया। जहाज से एक कश्ती उतारी गई।
इससे कहती हुए चंद आदमी मुझ तक पहुंचे और पूछने लगे कि तो कौन है और यहाँ क्या कर रहा है, इस पहाड़ पर कैसे पहुंचा, हमने कभी किसी को यहाँ नहीं देखा। मैंने कहा, मैं सौदागर हूँ। जिस जहाज पर मैं सवार था वो तूफान में फंसकर टूट फूट गया। एक तख्ता मेरे हाथ लगा, इस पर अपने बच्चे खिंचे माल समेत यहाँ या पहुंचा। उन्होंने मुझे इस तमाम माल समेत जो मैंने गार में से समेटा था कुश्ती में बिठा लिया और जहाज पर जाकर कप्तान के सामने ला खड़ा किया। कप्तान ने कहा, ए शख्स, तो इस जगह कैसे पहुंचा? ये बहुत बड़ा पहाड़ है जिसके पीछे एक भरा पूरा शहर आबाद है। मैं उम्र भर इस समंदर में सफर करता रहा हूँ और इस पहाड़ के पास से बार बार गुजरा हूँ, लेकिन यहाँ जंगली जानवरों और परिंदों के सिवा किसी को नहीं देखा। मैंने वही कहानी वो हरा दी जो कुश्ती खींचने वालों को सुनाई थी। शहर और गार का जिक्र बिल्कुल न किया। डर था कि जहाज पर शहर का कोई रहने वाला ना हो। अपने माल में से बहुत से जेवर और हीरे निकाल कर जहाज के कप्तान को देने चाहे। वो लेने पर राजी न हुआ और बोला, हम किसी से कोई चीज नहीं लेते। जब समंदर के किनारे या किसी जजीरे पर किसी भूले भलके को देखते हैं तो उसे जहाज पर ले आते हैं। अगर उसके पास कुछ न हो तो अपने पास से इसे रुपया पैसा देते हैं। महज खुदा के लिए ये भलाई करते हैं। ये सुनकर मैंने इसे ढेरों दुआएं दे। हम जजीरे जजीरे सफर करते रहे। मैं अपनी सलामती पर खुश था। जब मुझे गार में मर्दों के दरमियान गुजारे हुए दिन याद आते तो कपकपी तारी हो जाती। खुदा खुदा करके हम हिफाजत से बसरा पहुंचे। वहां से मैंने बगदाद की राह ली और घर आकर घर वालों और दोस्तों से मिला। उन्होंने सफर से सही सलामत लौटने पर मुझे मुबारकबाद दी। जो माल मेरे पास था वो मैंने गोदामों में रखवाया, तेनी दिए, खैरात की, तीमोहे और गरीबों को कपड़े बनवा दिए और दोबारा ऐशो आराम की जिंदगी बसर करने लगा। तो दोस्तों, ये था मेरे चौथे सफर का अहवाल। सनद बाद हम्माल, अब तो मेरे साथ खाना खा और 100 अशरफियां ले जो तुझे रोज मिलती हैं। कल मैं अपने 5वीं सफर की कहानी सुनाऊंगा।